Thank you very much. Today, I am going to discuss the pair of linear equation with the two variables. Before that, I want to suggest something to my young students. शिक्षा दान is the महादान और शिक्षा ही is an asset. When you donate, it increases, unlike the money. Second part, this donation means you teach your younger students. For example, if you are studying the 9th, and if you are teaching free to the 9th student or 8th student, your educational asset will increase. That means the education can be donated from childhood to your till death. Unlike the money, because money you are going to earn after completing the education. And the money if you are donating also indirectly benefits, but not like A. I will give you one example. I went to a NIT, National Institute of Technology, for a lecture. One student asked, "Sir, why IIT students feel big, top?" So there is one point which makes IIT unique. What is that point? जो लड़के वहां पढ़ते हैं किसी भी डिसिप्लिन के हो, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं. तो if the one student is not understanding the lecture given by a teacher, he first discuss among the friends, and their friends explain, and both understand. And if they are not able to understand among themselves, then the last priority is to go to discuss with the teacher. That's the basic difference. तो विद्या दान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है. After that, I will start my lecture. In first lecture, earlier lecture, we have discussed linear equation with a single variable. For example, just say ax plus by is plus c is equal to 0. Here, x and y are two variables. In my earlier lecture, there was only x variable. So that was called the linear equation with single variable. And here, the linear equation with two variable. So first A part is linear equation with two variable. ध्यान रखिएगा, linear equation मतलब single linear equation with two variable. Next, pair of linear equation with two variable will come. And in both cases, we have to solve the equation analytically and graphically. So first I will discuss graphically and analytically both. Then we'll jump to the other part. अब देखिए यहाँ पर, अब ये चीज आप माइंड में आपको एकदम बैठाना पड़ेगा कि A is a coefficient of x, B is a coefficient of y and C is a constant. ये आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा. वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है जो है. और इस इक्वेशन को हम कहेंगे नोन एज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. केवल सिंगल कहने की कोई मतलब नहीं कहे तो सिंगल है ये. अब देखिए, अगर आप C को इस साइड में ले जाए तो माइनस, तो क्या बिकम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी. दिस इज फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप क्या है? अगर आप ए एक्स को फिर इधर ले जाते हैं तो सी माइनस ए एक्स हो जाएगा. दैट मीन्स बी वाई इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स. और बी इधर मल्टीप्लीकेशन है, राइट में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. तो ये वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस एक्स अपॉन बी. मैं शुरू में ज्यादा समझ दे रहा हूं जिससे कि अभी बार बार हमको नहीं करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट में जाओ, राइट से लेफ्ट में जाओ. तो वाई माइनस माइनस है, अगर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सी प्लस एक्स अपॉन बी. ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा. मैंने क्यों इसमें थोड़ा समय हम ज्यादा दिया? इसलिए ज्यादा दिया कि इफ यू हैव ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो y को x के टर्म में लिख सकते हैं. और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप दूसरा अटेम्प्ट करेगा कि हाउ x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ y. और उसके लिए क्या करेंगे मैं हिंट दे रहा हूं. उसके लिए जैसे आप यहां पर किया कि अगर
x को निकालना है तो c को भी इधर ले जाइए और by को भी इधर ले जाइए और फिर a से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन क्या पाएंगे वो मैं बता रहा हूं, यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। फाइनल इक्वेशन में लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन ए। देखिएगा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम y को लिखें या x को लिखें। प्रिफरेबली ग्राफ प्रेजेंट करते हैं तो x वेरिएबल होता है, वो x एक्सिस पर लिखा जाता है, इसीलिए जनरली जो है y को x के टर्म में लिखा जाता है, ये ध्यान रख लीजिए। ओके, वंस यू हैव रिटन दिस वन, तो आप कह सकते हैं कि इफ यू नो एबीसी, एबीसी तो पता ही होगा, दैट मीन्स कि अगर x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू निकल जाएगा, x की दूसरा वैल्यू रखेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। इफ यू पुट third value, fourth value, fifth value, accordingly you can. So you can have a table. Variable x को वेरी करिए और y को लिख दीजिए, that is called the table of x and y. अब देखिए, अब एग्जाम्पल एक दे रहा है, find the value of y for a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to -7. अगर आपको एक क्वेश्चन याद है, माइंड में जो लड़के सार एकदम याद होगा, अगर ये क्वेश्चन है यार सर ऐसे बताए थे y इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर c सबकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर a इक्वल इतना फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द x, और डिफरेंट वैल्यू x क्या होता है? 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, अब 3, 4, 5 जितना लेंगे उतना ही x की वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, तो x इक्वल टू 0 पर y कितना हो जाएगा? 7/3। अभी ध्यान रखिएगा, तो x 0 है तो 7/3 है, तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? 0, 7/3 हो गया। ज्योमेट्री में मैं बचा चुका हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है, तो यहां पे ये मत कहेगा भाई x पता है तो y की वैल्यू है, s क्या होगा? x पर, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर। अब 1, 2 की वैल्यू यहां दिया हुआ है, उसी तरह 1 पर 5/3 तो ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा, 2 पर ये हो जाएगा। अब देखिए क्यों 3 ही तक, कोई पूछ सकता है सर व्हाई ओनली 3 पॉइंट्स? बिकॉज यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, और 3 रखेंगे तो और आसान होगा, 4 रखेंगे तो और बढ़िया होगा, तो जितने रखेंगे उतना बढ़िया होता जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका क्या हो गया? एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, ओ सॉरी, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये हो गया, सेकेंड ऑर्डर पेयर हो गया, थर्ड ऑर्डर पेयर हो गया। आप 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं कि मैंने उसमें नहीं जा रहा हूं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल 1 का मतलब था कि x को वेरी करेंगे तो y को उतनी ही वैल्यू आएगा, बस ये था और कुछ नहीं था। अब एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि प्लॉट ऑर्डर पेयर ऑफ एग्जाम्पल 1 ऑन स्क्वायर ग्राफ पेपर। तो हमने क्या किया? ऑर्डर पेयर लिख लिया, पहले तो ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर पेयर यहां पर फ्रैक्शन में है, ध्यान रख लीजिए, और फ्रैक्शन में तो आप स्क्वायर ग्राफ पेपर प्लॉट कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। अब डेसिमल भी 2 तरह के होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर इनकी वैल्यू को जो है 1 डिजिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1.1 प्लॉट करना तो बड़ी आसान है, 1.11 प्लॉट करना तो कठिन है, तो अप्रॉक्सीमेट करके डेसिमल को 1 पॉइंट पर लाओ। कैसे लाया जाता है ये पढ़ाए होंगे। सबसे पहले देखिए, 7/3 इज इक्वल टू 2.33, ये 1 है, ये 10th है, ये 10th 100 है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 0.5 है या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जुट जाएगा, लेकिन 5 से कम है तो इसको जुटने की कोई जरूरत, उसी तरह खड़े, तो इसीलिए 2.33 बिकम्स 2.3। इसलिए देखिएगा ऑर्डर पेयर में हम 2.3 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए 7/2.3 और 5/3 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका क्या है? 5/3 को 1.7 लिख सकते हैं, क्योंकि 1.66 कैसे आएगा?
उसको 1.7 है, क्योंकि सेकंड डिजिट जो है 5 से ज्यादा है। बस इतने के लिए मैंने ये लिखा है, ये बहुत पहले बताया जा चुका। तो अब हमारा ऑर्डर पेयर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस इन स्क्वायर ग्राफ पेपर। स्क्वायर ग्राफ में बताते हैं वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, लेकिन इसको देख करके आपको मानना पड़ेगा कि 1 यूनिट कितने के बराबर है। देखिए x की वैल्यू 2 तक गया है, तो 1 यूनिट इजकल टू 1x मानेंगे, 1 यूनिट इजकल टू 1x मानेंगे, और 1 यूनिट 1y मानेंगे। तो क्या होगा, अब यहां पर देखिए हम 3 ले लिए हैं, x पर अभी एक अधिक ले लिए हैं, और y पर हमारा 2 है तो y पर भी 3 ले लिए हैं। सीक्वेंस रहता है, बराबर रहता है, तो जरा देखने में अच्छा लगता है ग्राफ पेपर जो है, और सही भी है। अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट 0 2.3 है, तो 0 पर जो है 2 यहां गया, और जो छोटा छोटा होता है ना 10, तो वो 3 यहां कर दीजिए, तो 0 2.3 ए हो गया। फिर उसी तरह से देखिए 2 1.7, 2 यहां पर है, 1.7 देखिए यहां पर आ गया जो है। फिर आपका जो है 2 1 है, 2 1 है। अब देखिए अब यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रा कर्व। अब यहाँ 3 है तो मजे है, 4 होगा तो यहाँ आएगा, 5 होगा तो यहाँ होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर समझ लो ना, तो अब इसको मिला दीजिएगा एबीसी को डॉटेड लाइन से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमने निकाल रखे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन, अब 0 2.3 इज आल्सो सोल्यूशन, 1.11 ये सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, और इसके मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा, केवल एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज हो सकता है। इनफाइनाइट का डिफिनेशन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। इनफाइनाइट में वेरी वेरी लार्ज, 10 15 20। लेकिन हमारा जब 3 ही से ही काम चल रहा है, 2 से काम चल रहा है, तो कहें को हम 1000 पॉइंट रखें भाई, नहीं। ठीक है, अब देखिए पेयर, अब यहाँ पे पेयर वर्ड यूज किया गया। पेयर मतलब 2, जोड़वा क्या 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 कहता है, 2 होता है, तो 2 यहां नहीं यूज किया गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद सेम 2 वेरिएबल, वेरिएबल वही एक्स वाई है, तो क्या होगा ax प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू a2x प्लस b2y इजकल टू c2। ये हमने यहां पे बताया है आपको, लेकिन आगे चल करके अपना माइंड में तैयार रखिएगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि a1 अपान a2 क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क में लिख रहा हूं। फिर b1 अपान b2 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहां पर भी हमको पता नहीं है। c1 अपान c2 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग में रखना होगा, पहला इक्वेशन रही तो x के कोफिशिएंट a1, y के कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट के c1। दूसरा इक्वेशन हो तो x के कोफिशिएंट a2, b के कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2। ये याद रखिए बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब जनरली जो है ये वर्ड प्रॉब्लम इसमें दिया गया है, सीधा भी दिया गया है। जैसे ये आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे, वो इक्वेशन दे दिया है कि भाई सॉल्व करो। अब यहाँ इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा हाई स्कूल में आप आ गए हैं, तो बड़े क्लास में आ गए हैं, तो अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए, अब कहेगा कि हमको रेशियो नहीं पता है, तो भूल जा सवाल ना लगा सकेगा। रेशियो का मतलब समझना पड़ेगा। रामू एंड श्याम 2 हैं लड़कों का नाम, या 2 भाई हैं। हैज टू बी गिवन मनी इन रेशियो ऑफ 3:3:2, और पिता के पास जो 45 रुपया है। बड़ा को कहा कि थोड़ा अधिक दे दो, छोटा को थोड़ा कम दे दो। होता है, गांव में बंटवारा होता है। अब कैसे सवाल करेंगे, लेकिन वो कह दिया कि थोड़ा ज्यादा नहीं, 3:2 रेशियो में मनी बटेगा। अगर आपको रेशियो नहीं पता होगा तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि रामू को x रुपया है और श्याम को y रुपया है। मानना पड़ेगा, क्योंकि राम श्याम बार बार नहीं लिखेंगे, बहुत झंझट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है, देखिए यहां पर लिखा गया है, ई शुड गेट सोल्यूशन। लेट अस अज्यूम x एंड y आर गिवन टू रामू एंड श्यामू इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब क्या हुआ,
रामू पहले आ गए, श्यामू बाद में आ गए, रामू का हिस्सा पहले आ गया, श्यामू का हिस्सा बाद में आ गया। और इसका मतलब जो है आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मैंने एक्सटर्नल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ax प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3y को उधर लगे तो ये हो जाएगा। अब यहां पे ये लाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x को a1 कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को b1 करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, 0 है, ये यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जब तक तुम्हारे दिमाग में ना रही तो ना लिख सकेला। यही सब करे पहले ही दिमाग में बिठा लो कि a1 b1 c1 का है, a2 b2 c2 का है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा कि उसके पास टोटल जो है 45 रुपीज है, तो अंडरस्टूड है भाई, अगर रामू एक्स लेंगे श्यामू वाई लेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 कर दिया। अब इसमें भी ध्यान रखना होगा, 45 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए C1 माइनस 45 हो जाएगा। A1 B1 मैं पहले बता, A2 B2 पहले बता दिया हूं। तो अब आपके पास जो है दो इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन हो गया -2x 3y = 0 जो ये वैल्यू दे रहा है, और दूसरा ये होगा जो ये वैल्यू दे रहा है। अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां पर पहले एनालिटिकली निकाला गया है, फिर ग्राफिकली बताएंगे एनालिटिकली कैसे निकाला गया है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब इसी को ले लीजिए, तो 2 को इधर लाएंगे तो x = 3y/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसे x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। अब मैं बताने नहीं जा रहा हूं कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां जब रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x की वैल्यू रख दिया। y हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं ये भी नहीं, यहाँ 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 5y/2 आ जाएगा। y = इसको करेंगे तो ₹18। अगर एक को 18 मिला तो 45 में से 18 घटा दिए, 27 रुपया मिल जाएगा। ये एनालिटिकली सोल्यूशन हुआ। लेकिन ग्राफिकली बाबूजी कैसे निकालेंगे वो अब मैं बताऊंगा। देखिए वो अभी बाद में बताऊंगा, वो अभी अभी एनालिटिकली सब चल रहा पोजीशन जो है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 याद रखिएगा, उसको आगे चल के बताएंगे। अंजू वेंट टू ए फेयर इन ए विलेज एंड शी हैज 20 रुपीज इन हर पॉकेट। बच्चे हर बच्चे हम लोग भी थे, बाबा 1 रुपया दिया, 1 रुपया लेके गए, अब 1 रुपया में क्या खरीदेगा हम डिसाइड करब जनबा। पहले तो डिसाइड करेंगे क्या हमें क्या कर क्या चाहिए। हमें बाबा के 1 रुपया चोरा नहीं तो मेला में ले गए, नहीं तो चश्मा खरीदनी, बांसुरी खरीदनी, धनुष खरीदनी, अब पैसा मैं पैजामा में लगा लेने। बाबा हमारी बहन पर शक किए कि तू ही चुरौले बड़े। अरे ना बाबा हमने की चुरौले, हम पहुंच गए, सब पैजामा ऊपर तो खींचा तो झर पैसा गिरा, देखा चोर पकड़ा। बाबा हमसे प्यार करो, मरबो तो प्यार कर, छोड़ जाओ, दुकान पर जो पता करके सही पैसा ले लेगा ना। तो उसी तरह से अंजू जो है वेंट मार्केट में, उसके बाद 20 रुपया था, लेकिन करना क्या चाहते थे, झूला झूलना चाहते थे, अंग्रेजी में जाइंट्स व्हील बोलते हैं। और दूसरा जो है बोतल पर रखा रहता है वो रिंग टॉस, वो खेलना चाहते थे। तो पूछेगी ना कि भैया इसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है। अब देखिए तो क्या दिया, थोड़ा मतलब नंबर ऑफ द टाइम्स शी प्लेड रिंग टॉस, number of the times she played ring toss is 2 times she played the giant's wheel, झूला। मैंने जितने बार रिंग टॉस उसने किया, जितने बार किया, झूला को दुगना किया, झूला पर दुगना बार चढ़े, इसका मतलब ये हुआ है। अब देखिए, फॉर ईच राइड ऑफ द जेंट्स सी हैज टू पे 3 रुपीज, मैंने एक बार झूला झूलेगी तो 3 रुपया देगी, और एक बार रिंग और एंड फॉर ईच टाइम्स ऑफ द रिंग टॉसेस सी हैज पे 4 रुपीज। रिंग टॉस में एक बार में 4, झूला में 4, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड जेंट्स व्हील एंड रिंग टॉस। सोल्यूशन पहले मानिए, लेट अस अज्यूम अंजू प्लेड x टाइम्स जेंट्स एंड राइड y टाइम्स टॉस। पहले तो टाइम्स निकाल लीजिए। और देखिए कह रहा है फॉर 1 टाइम्स, ये यूनिटी मेथड है, फॉर 1 टाइम शी हैज टू पे ₹3 फॉर जेंट्स व्हील। एक बार के लिए 3 रुपया करता है तो x टाइम्स क्या करेगा, 3x करेगा। उसी तरह से एक टाइम के लिए 4 रुपीज कर रहा है तो y के लिए क्या कर रहा है, 4 टाइम्स करेगा। लेकिन
वह कह रहा है सिंस शी हैज टू टोटल मनी ऑफ 45, तो क्या होगा, दोनों पैसे को जोड़ेंगे तो 45 के बराबर, अरे 20 के बराबर है क्या, हाँ 20 रुपीज है, तो दोनों पैसा मिला के 20 रुपीज की, और 20 रुपीज में वाई कैसे आया मैं पहले बता चुका हूं, यह वाई हो गया जो है। अब देखिए फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ द रिंग टॉस इज 2 टाइम्स इतना, तो x इक्वल टू 2y, ये रिंग टॉस है ये व्हील है। अब यहां से y इक्वल टू x/2 निकल गया, और जैसे मैंने कहा था एनालिटिकली के लिए, अभी मैं ग्राफिकल एनालिटिकली मैं अभी बता दे रहा हूं, दो चीज है, y को या तो यहां रखिए x निकल जाएगा, ठीक है, y को 20 माइनस 3x/4 इक्वल टू x/2 करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरह का सॉल्यूशन 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं यहां बताने वाला नहीं हूं। जब x निकल जाएगा तो y अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए अब ग्राफिकली बता रहा है ये कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। भाई हमने कहूँ ज्यादा हो गल बा तो बोलला से एनर्जी जो बा ढेर निकलेला, तो थकान ज्यादा है तो उसको एनर्जी देने के लिए पानी भी पीना एक एनर्जी होता है, ऐसे बीच बीच में पानी पीते हैं। अब देखिए फ्रॉम स्टेप 2 एंड 3 ये है, और इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख के रख दिया गया है, ये अपने माइंड में रख दिया गया, खत्म करिए उसको अभी मत करिए। स्टेप 5 क्या है, अगेन फ्रॉम स्टेप 2 y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, दो y है, एक y है एक y है, दोनों y x पर डिपेंड कर रहा है। दो आप जो है टेबल बना दीजिए, टेबल है इसके लिए, टेबल उतना, हमने कहा था ना x को अपने मन से वेरी करिए। अब कहेंगे कि सर 0 2 6 क्यों ले लिए, अरे 0 तो स्टैंडर्ड है भाई, 1 भी ले सकेला, 2 भी ले सकेला, 3 भी ले सकेला, ले सकेला, तो लेवे तक हुए परीक्षा में उतने समय तहर बर्बाद हुए। तो समय बर्बाद न होने के लिए क्या करिए, 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो 4 को छोड़ 0 2 6 ले लीजिए, नहीं आ रहा तो फिर एक और पॉइंट ले लीजिए, वही तरीका है। लेकिन दोनों में बराबर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 पर 5 आएगा, 2 पर 4.5 आएगा। यहाँ पर अब इस ग्राफ को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान को देखेंगे तो इसको पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर ये हो गया, इसका ऑर्डर पेयर ये हो गया, इसको यहाँ प्लॉट कर लीजिए। अब बार बार तो बताएंगे ना कैसे प्लॉट किया जाता है, एक्स को पहले एक्स पर वाई पर, तो आप पाएंगे कि ये जो इंटरसेक्टिंग है, ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टेबल पॉइंट पर कर रहा है, इसका मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। और यहीं पर मैं हिंट दे रहा हूं, A1 अपान A2 क्या होगा, 3/1 होगा, और B1 अपान B2 क्या होगा, 4/2 होगा। ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो जान लीजिएगा कि ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, इसका सॉल्यूशन एक है और कंसिस्टेंट है। 3 वर्ड है वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल गया। अब ये सॉल्यूशन जो है ज्वाइन एबीसी, अब ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे एनालिटिकली, अब वो मैं पहले बता रहा हूं, जो मैंने तरीका बता करिए और देखिए एक्स वाई की वैल्यू वही आता है कि नहीं आता, हो सकता मैं इसमें किया भी हूं, हमको ध्यान नहीं है। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमने कर दिया, एक्स ये है, ठीक है, 3x, x4 ले लिया, y2 ले लिया, तो y इतना आ गया, b इतना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, y वाला वैल्यू लिया गया। देखिए वेरिफिकेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, 2 4, तो x की 2 निकालिए, y को निकालिए। देखिए दोनों इक्वेशन में x इक्वल, दोनों इक्वेशन से y आ जाएगा, तो अभी होगा अंजू पेड x इक्वल टू 8 रुपीज फॉर जायंट्स व्हील, y इक्वल टू 12 रुपीज फॉर रिंग टॉस, ठीक है। और एनालिटिकली भी निकाल के देंगे तो यही आएगा। 5 रोमिला नाम है लड़की का, लड़के का, स्टेशनरी शॉप पर गए, उन्होंने 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपये में खरीदा, ठीक है। हर फ्रेंड saw the same variety of the pencil eraser with Romila and also she
bought 4 pencil 6 eraser for same kind for 18 rupees। अब चूंकि इसको ज्यादा इसलिए देना पड़ा कि पेंसिल भी उसने बढ़ा दिया और इरेजर भी बढ़ा दिया। ठीक है, अब इक्वेशन फॉर्म करना है, कैसे करेंगे? अगर एक्स वाई मान लेंगे, मैंने सोल्यूशन में होगा कहीं पर जो है, लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और वन इरेजर इज एक्स एंड वाई। एक एक पेंसिल का कॉस्ट, तो 2 पेंसिल का 2x, इसका 3y इज इक्वल टू 9, इसका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। दो इक्वेशन आ गया, और दोनों का y निकाल लिया गया, दोनों का टेबल बना दिया गया, दोनों के पॉइंट आ गए, ऑर्डर पेयर। ध्यान रखिएगा 1/3 को अप्रॉक्सीमेटली 0.3 कर दीजिएगा, 0.3 कर दीजिएगा, 0.3 कर दीजिएगा, यहाँ 0.3 कर दीजिएगा, 0.3 का मतलब कि एक यूनिट के बीच में छोटा छोटा 3, ध्यान रख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट मेथड से प्लॉट कर दिया, और यहां पाया कि दोनों इक्वेशन ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसके भी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल नहीं, ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या है? अब आप कैलकुलेट करिएगा दिमाग में लगा करके, a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2, c1/c2 इक्वल टू 1/2, यानी a1/b1 a1/a2 b1/c1, तो ये कंडीशन आएगा तो ओवरलैपिंग कंडीशन कहा जाएगा। कर्व ओवरलैप कर रहा है, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, वही चीज हो गया मतलब। अब देखिए, अब यह कह रहा है कि यहां पर 3 सॉल्यूशन हैज बीन शोन, है मेनी सॉल्यूशन। अब देखिएगा यहां पर, अब देख रहे ना, 3 सॉल्यूशन आ गया, 045 और 02 भी ले सकते हैं, 06 भी ले सकते हैं, 08। अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल, 2 रेल्स आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। 2 रेल जा रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट किया गया। अब रेल है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए दोनों रेल पैरेलल में चलेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे तो लड़ जाएंगे, ये पैरेलल चलेंगे। खैर वो भूल जाइए, ग्राफिकली बताना है तो 1 से y इक्वल टू इतना है, 1 से y इक्वल टू इतना है, दोनों का टेबल बनाया गया। देखिए, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, ऑर्डर पेयर ये है, ऑर्डर पेयर ये है। अब देखिए इसको प्लॉट किया तो देखिए, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, एक इधर, दोनों पैरेलल चल रहा है। इंटरसेक्टिंग, ओवरलैपिंग और पैरेलल दोनों अलग अलग है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बता चुका हूं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओवरलैपिंग का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये बता चुका हूं। अब इसमें जरा देखते हैं क्या है जो है। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, इक्वेशन तो यहां दिया हुआ, a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2 और c1/c2 इक्वल टू 1/3। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बताता है कि दो लाइन पैरेलल है। ग्राफिकली दिया, एंटिकली बता दिया है। conclude that both are straight line which are parallel to each other as expected for 2 rail lines. Graphical method. Graphical method of solution of a pair of linear equation for 2 variables. Based on the example 4 to 6, one can conclude that. What? Refer example 1. There are 2 algebraic equations, namely this and this. Both equation has been plotted in the step 6 of example 4. This figure indicates that both straight line intersect and ordered pair 4 to solution है. Hence, point intersecting point is solution of that equation. Case 2. Both equation this and this coincide each other. a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर, यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। 6, इसमें देखिए, इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कह रहा है पैरेलल टू ईच अदर एंड नो कॉमन पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ओवरलैपिंग में सब इंटरसेक्टिंग है। हेंस देयर इज आल्सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये मैं वही है जो मैं कंडीशन बता चुका हूं, इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं
कि एनालिटिकल मेथड फॉर, अगर मान लीजिए सोल्यूशन दिया है, केवल क्वेश्चन ये पूछे कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस, केवल ये पूछे क्वेश्चन, तब कैसे निकालेंगे वो बता रहा है। अगर केस 1 में A1/A2 1/3, B1/B2 -1/2 ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है, ये कंडीशन ये है, इक्वेशन इंटरसेक्टिंग विद वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट है। ठीक है, वो मैं पहले बता चुका हूं। अब दूसरे का देखिए, A1/A2 = B1/B2, याद देखिए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये क्या है, टू इक्वेशन आर पैरेलल विद नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये कोइंसाइड करेगा तो इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। ये तीन कंडीशन यहां पर देते हैं। कंक्लूजन फॉर सॉल्यूशन, टू लाइन शुड इंटरसेक्ट एंड कंडीशन फॉर इंटरसेक्ट इज दिस, मतलब फाइनली इंटरसेक्टिंग का ये है, सॉल्यूशन निकालनेगा और उसका इनिशियल सॉल्यूशन निकलेगा, बाकी का भी निकलेगा, इन्फिनाइट होगा जो है, सिंपल। अब देखिए ये रेशियो दिया हुआ है और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, कोइंसिडेंस, इंटरसेक्टिंग। एक एग्जांपल हमने दिया है, एग्जांपल ये लेकर के A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। दूसरा A1/A2 कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है इंटरसेक्टिंग विद कंसिस्टेंट। बाकी आप कर लीजिए, तीनों कंडीशन लगा के, कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको मैं बार बार इसको कहूं, मतलब जरा। अब कह रहा है check graphically whether the pair of linear equation this, if consistent, if so solve them graphically। वही चीजें हैं, हमने एक टेबल ये बनाया, एक टेबल ये बनाया, 0 3 सिस्टम में 0 3 सिस्टम में लिया, ठीक है। अब इसके कंडीशन निकालिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसे है, इसको प्लॉट करिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको ग्राफिकली चेक भी कर सकते हैं। Both equations intersect at common point, this and this is the solution of pair of the equation। इसको सॉल्व करिए, y यहां से निकालिए, इसमें रखिए, x निकालिए, x निकल जाए तो y निकल जाएगा। देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप करिएगा, मैं नहीं करूंगा। हर चीज टीचर नहीं करेगा, आप करिए। अब ये कह रहा है ड्रा द ग्राफ इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, डिटरमाइन द coordinate of the vertices of a triangle formed by the lines and the x-axis and shade of the triangle। x-axis है, दो इक्वेशन है, इसका वर्टिसेस पाना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ग्राफिकली कह रहा है तो एक टेबल ये बनेगा, एक टेबल ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए A B C D, ये लाइन इक्वेशन का हो गया, और A डैश B डैश C डैश दिया गया, यहाँ पर B डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ जा, तो वर्टिसेस क्या हो गया, ये हो गया 2 3 हो गया, ये क्या हो गया -1 0 हो गया, ये क्या हो गया 4 0 हो गया, तो वर्टिसेस ये हो गया, सॉल्व। अब इसी में इक्विलेटरल है कि आइसोलेस है कि क्या है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो आप देखिएगा। अब देखिए which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। A B C दिया हुआ है, हम एक का एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो क्या है, कंसिस्टेंट है, टू लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन है जो। स्टेप 1 आप इस तरह से राइट करिए, प्रिपेयर 2 टेबल, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, प्लॉट करिए, देखिए सब कोइंसाइड कर रहा है, खत्म, ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि A1/B1 = बराबर है। यहां पर देखिए, अब ये प्रॉब्लम दे रहा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द इट्स ब्रेड्थ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। एनालिटिकली इसको निकालना है, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। अब कह रहा है लेट अस अज्यूम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ L W, ठीक है। अब कह रहा है पेरीमीटर इसका क्या होगा, L और W लेंथ है तो पेरीमीटर क्या होगा, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2L + 2W, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर L + W हो जाएगा। L + W 36 दिया हुआ है,
और फिर कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर लॉन्गर देन विड्थ, तो विड्थ में 4 जोड़ दिया तो लेंथ के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 36। दोनों 36 हो गए क्योंकि हाफ पेरीमीटर तो दोनों है। तो अब इनमें से दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये बन गया, अब एक इक्वेशन ये बन गया। देखिए यहां से W निकाल लीजिए 16 मीटर, इलिमिनेशन प्रोसेस है जो है, और L इक्वल टू 20 मीटर। अब कह रहा है सॉल्व द एग्जांपल 11 ग्राफिकली। अब ये आपको करना है, कौन सा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, LW इतना गिवन, ये दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा L प्लस W इक्वल टू 36, तो L माइनस इसमें A1 B1 C1 निकाल लीजिएगा आप, यहां पर लिख दिया है L माइनस W इक्वल टू 4, L प्लस W इक्वल B1, ये कंडीशन लगा दिया है, प्रिपेयर टू ऑर्डर पेयर, प्लॉट करिए, सोल्यूशन निकालिए। इस स्टेज पर आप लिखते महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई बड़ा जरा। अब थोड़ा 10 का लेकर बुद्धिमान 9 के बुद्धिमान होला सन, 9 में सिलेबस कम रखल बा, जिससे लेकर पढ़ो सन मैथ। अब 10 में तनी ज्यादा बा, जाने ली चिलम जब चढ़ा अंगारी, जब तारा कपार पर चढ़ी सवाल, तब मैंने समझो कि कितना हम तेज बने, उसे तो सब तेज का हम तेज बने। अरे कैसे तेज बा कर, तो जाने ली चिलम जब चढ़ेला अंगारी। अब देखिए यहां पर भी केवल एक इक्वेशन दिया गया और कहा गया कि दूसरा इक्वेशन डेवलप करिए। ध्यान सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो तीन ही कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग का है, पैरेलल का है, कोइंसिडेंस लाइन का है। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान, ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, तो क्या किया आप, पहले A1 अपान A2, A1 2 दिया है, इसको 4 मान लिए, खत्म मामला। मान लिया 4 भी मान सकते हो, कोई भी चीज मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बराबर नहीं होना। तो 3 पता है और 3/6 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, बराबर नहीं करना है। तो आप अपने मन से वैल्यू रख लीजिए। उसी तरह C1 C2 को अपने मन से वैल्यू रख लीजिए, माइनस रख लीजिए, प्लस रख लीजिए, क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर -16 कर दीजिए, 24 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि A1 B1 के बराबर भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, उसके बराबर है फिलहाल। अब क्या हो गया, जब A2 पता है, B2 पता है, C2 पता है, तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में जब देखिएगा, इस केस में देखिएगा, अब क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 8 है, तो ये इक्वेशन जो है इसका है। उसी तरह इसमें, अब इसमें बराबर B1 अपान B2, तो यहाँ 2/4, यहाँ 3/6 कर दिया तो B2 6 हो जाएगा। इसको ये भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट में तीनों बराबर होना चाहिए इसमें। तो A1 अपान A2, अगर A1 अपान A2 2/4 है तो 3/6 होना चाहिए, और ये -8/-16 होना चाहिए, तब तीनों बराबर होगा, तब आपका ये इक्वेशन निकल जाएगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है आपका जो पहले वाले का है, लेकिन 8 के जगह 6 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इसका हो, इसी का हो जाएगा। तो हम ये थोड़ा आपको अवॉइड दूर करने के लिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 4x, ठीक है, -8y -16 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन हो गया, और इसके इक्वेशन के लिए बराबर होना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा। आओ भाई, ये 6 हो जाएगा, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो न्यू इक्वेशन ये हो गया। अब आपको मैं दे रहा हूं कि हेकर इक्वेशन तो हम लोग अपने आप लिख लो, हम ना लिखो, देख के। अब देखिए, घनु वेंट टू सेल, सेल में जानते हैं ना, माल में लिखा था सेल सेल सेल, सस्ता सामान मिलेगा। टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, when his friend asked him how many each he bought, he answered, वो answered क्या किया है कि नंबर ऑफ द स्कर्ट
इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द पैंट्स परचेज, एक कंडीशन। दूसरा, आल्सो द नंबर ऑफ द स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द पैंट परचेज। ये क्वेश्चन बड़ी आराम से बना सकते हैं। ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द पैंट्स 2x, 4 टाइम इज 4x, तो y क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस 2, डबल में 2 कम, यहाँ पे चौगुना में 4 कम, 2 इक्वेशन बन गया। और 2 इक्वेशन बन गया तो आप बड़े आराम से इसका टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लिटरेचर बना सकते हैं। इसलिए हम लिखे डू योर सेल्फ। कंक्लूजन, अगर आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो ये हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है हमारे 9th क्लास के लेक्चर में देखिए, 8th क्लास के लेक्चर में देखिए, वहां पर हमने दिया है। और क्या हमने कहा है, इसीलिए हमने, बहुत लोग पूछे अरे सर आप 1 से लेक्चर दे रहे हैं, 2 से लेक्चर दे रहे हैं, 3, अरे भाई मान ली कोनो लइकन के पढ़े में मन 5 तक ना लागल, लेकिन भगवान के बुद्धि से, माता पिता के बुद्धि से उ 6 में पढ़े लाग चाहता पढ़ल, तो के पढ़ाई फिर पढ़ जाए ना। हमारा यूट्यूब में 1 से लेके 5 तक का इंपॉर्टेंट चीज देख ले तो उसको पढ़ने में आसान हो जाएगा। मान लें 8 तक नहीं पढ़, हम ना पढ़ रहे 8 तक, 8 में हम 3rd डिवीजन फेल रहने, लोग चिढ़ावे लगले लोग कि 3rd डिवीजन मत कह, 1st डिवीजन 2 बॉडीगार्ड कह। हमारा बड़ा हृदय में लागल, हम कह रहे भाई तो बॉडीगार्ड हटावे के पड़े। सीधे बलिया से बनारस गए बाबूजी, क्या अकेले गए थे, कोई माई बाबू अपने साथ नहीं था। ये भी बता रहा हूँ, उस समय बिना टिकटे गए थे, पैसे नहीं था, अब पैदल घर से घर गए। तो हाई स्कूल में पहला बॉडीगार्ड हटा दिए, इंटर में दूसरा हटा दिए। जनरली उस समय हाई स्कूल में जो फर्स्ट क्लास आता था, इंटर में 3rd 2nd क्लास आ जाता था। हाई स्कूल का 2nd वाला इंटर में फर्स्ट आता ही नहीं था, असंभव। वो असंभव को संभव जीएन तिवारी ने कर दिया। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को बता रहा हूं कि बच्चे को आप अपना ज्ञान सिखाइए, व्यवहार सिखाइए और इंपॉर्टेंस ऑफ द पढ़ाई सिखाइए। वो कब उसका ज्ञान हो जाएगा, इसलिए देखेंगे बहुत से आईएएस बने, इंटर में 3rd डिवीजन पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि इंटर के बाद वो मेहनत कर दी है। रेस होता है तो जो चीता पहले धीरे धीरे चलता है, एनर्जी बचाता रहता है, और जब पॉइंट आता इतना तेज मारता है कि एकदम टॉप पर चला जाता है। वो बनने की कोशिश करिए। और ये भी मैं बता रहा हूं, जो यूपी बोर्ड टॉप करता है वो को भी इंटर नहीं टॉप किया है, देख लीजिएगा, होगा एक आठो। और जो इंटर टॉप करता है वो बीएससी नहीं टॉप करता है, और बीटेक नहीं टॉप करता। जो जेई टॉप करता है बीटेक टॉप नहीं करता है। उसके भाग्य में क्या लिखा है, इसीलिए मैंने कहा था कि माता पिता का आशीर्वाद रखे रहो, सूरज भगवान पृथ्वी का गोल लागते रहो। कब भाग्य तार चमकी, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, कोई नहीं जानता, स्त्री के चरित्र को पुरुष कोई नहीं जानता। तो मान लो और अपना पढ़ाई चालू रखो और दान करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो फ्री में। नमस्कार, धन्यवाद।